Very good morning to all of you. Welcome you all in class 12th economics. As you already know that we have started a new batch of class 12th. In the last class also we have uh, discussed the syllabus of your macroeconomics, as well as we know that the you have to study the two books in the class 12th economics, that is macroeconomics and the Indian economic development. Okay, so I have already told to you all that there are 12 chapters in your macroeconomics and the 10 chapters of your Indian economic development. So basically in the last 12th economics, Indian economic development, all the chapters which is related to Indian economy on the eve of independence, when the India got independence, after that Indian economy, what is the situation of the Indian economy between the 1950 to 1990. Next we have discussed uh, the new economic, we will study the economic policy that were introduced in 1991, that is called the New Economic Policy NEP 1991, in which the three concept, basically the liberalization, privatization, globalization, has been introduced in our economy. Next we have to discuss the poverty chapter, the situation of the poverty or the situation of poor in India, human capital formation, rural development, employment situation, infrastructure situation. These chapter that we are going to discuss, as well as the developmental experience of the India and its neighbor country. These chapter we are going to discuss in the Indian economic development, as well as we will discuss the macroeconomics, in which there are total 5 or 6 units are there, and we have to discuss total 12 chapters in your macroeconomics. So total chapter of economics in class 12 is 22. Okay, so in today's class also we are going to discuss first of all the syllabus of your economics. So what we are going to discuss. Okay, so let's get started. Next that we are going to discuss in this, that is the concept of the depreciation. Depreciation is also called as the consumption of the fixed capital, right? So we will discuss the causes of the depreciation, what are the different causes of depreciation, depreciation reserve fund or the provision for the depreciation. Next we will discuss the capital loss or the unexpected obsolescence. ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस करेंगे हम लोग क्या, प्रोविजन फॉर द कैपिटल लॉस. ठीक है, कैपिटल लॉस का प्रोविजन क्या हो रहा है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड द कैपिटल लॉस. कैपिटल लॉस और डेप्रिसिएशन में क्या डिफरेंस है. ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, डोमेस्टिक और दी इकोनॉमिक टेरिटरी. डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होती है, नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री किसको बोलेंगे, किसको हम लोग बोलेंगे कि ये नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री है, जिसमें हम लोग एग्जांपल्स किसके देखेंगे, नॉन रेसिडेंट्स के देखेंगे. इंपॉर्टेंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी एंड द नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन किसको बोलेंगे. फिर फैक्टर कॉस्ट एंड द मार्केट प्राइस क्या होता है, व्हाट इज़ फैक्टर कॉस्ट, व्हाट इज़ मार्केट प्राइस. नेक्स्ट हम लोग फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, नेक्स्ट NIT दैट इज़ नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये डिस्कस करेंगे. उसके बाद जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, डोमेस्टिक इनकम एंड दी नेशनल इनकम. ओके, तो डोमेस्टिक इनकम देखेंगे, किसको डोमेस्टिक इनकम बोलेंगे, किसको नेशनल इनकम बोलेंगे. ओके, सो डोमेस्टिक इनकम मीन्स NDP एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. नेशनल इनकम मीन्स नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखेंगे वो क्या होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA जिसको बोलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस दी डिफरेंस बिटवीन दी NFIA एंड दी नेट एक्सपोर्ट, कि NFIA क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, और नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे. नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या होगा, फैक्टर पेमेंट एंड द ट्रांसफ़र पेमेंट. what is factor payment and what is transfer payment. so factor payment, transfer payment, डिफरेंस क्या होता है,
फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम का ये डिफरेंस देखेंगे। नेशनल इनकम अकाउंटिंग देखेंगे, इसकी मीनिंग क्या है, इसके यूजेस क्या है, मीनिंग ऑफ द नेशनल इनकम अकाउंटिंग, यूजेस क्या है नेशनल इनकम अकाउंटिंग के, ये देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग को क्या देखना है, एग्रीगेट्स रिलेटेड टू द नेशनल इनकम से रिलेटेड एग्रीगेट्स क्या क्या हैं। सो बेसिक फार्मूलाज देखेंगे, 3 बेसिक, और फिर एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम, जो भी एग्रीगेट रिलेटेड होते हैं नेशनल इनकम से वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर हमें पढ़ना है वो क्या है, मेजरमेंट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम को अगर हम लोग को मेजर करना है वो हम कैसे उसका मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका, इसमें हम लोग को पढ़ना है पहले वैल्यू एडेड मेथड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मेथड, और प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, मेथड और दी प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, आउटपुट मेथड भी कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ द एस्टिमेटिंग दी नेशनल इनकम, कि डिफरेंट मेथड क्या हैं नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के, स्टेप्स क्या क्या हैं नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के, व्हाट आर द डिफरेंट प्रिकॉशंस फॉर द एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम, जब भी हम लोग नेशनल इनकम को एस्टिमेट करें तो डिफरेंट प्रिकॉशंस हम क्या लेंगे, एंड प्रॉब्लम ऑफ द डबल काउंटिंग, कि क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम्स क्या हो रही है, मतलब डबल काउंटिंग होता क्या है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखेंगे। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो टॉपिक क्या होगा, पहला वैल्यू 3 मेजरमेंट है नेशनल इनकम के। सबसे पहला हम लोग का है वैल्यू एडेड, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्रोडक्ट और द आउटपुट मेथड। नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या होता है, उसका कैलकुलेशन देखेंगे कि हम नेशनल इनकम बाय द इनकम मेथड कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टेप्स क्या होते हैं, ओके स्टेप्स देखेंगे एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, इन नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के स्टेप्स। एंड द लास्ट वन इज वी विल डिस्कस द प्रिकॉशंस फॉर द इनकम मेथड। इनकम मेथड के क्या क्या ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो हमें देखने पड़ेंगे। जो थर्ड मेथड है ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम, दैट इज़ एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, तो उसका मेथड्स देखेंगे, मेथड्स ऑफ द एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, स्टेप्स फॉर द एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम, एंड प्रिकॉशन फॉर एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम, ये सारा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ आइटम्स दैट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीएनपी, ठीक है। आइटम्स जो जीएनपी से, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से जो एक्सक्लूड हो जाते हैं, ठीक है, और किसी अदर एग्रीगेट से जो एक्सक्लूड हो जाते हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेशनल इनकम एट करेंट प्राइसेस एंड नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस पढ़ेंगे, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस पढ़ेंगे, फिर डिफरेंस देखेंगे किसके बीच का, नेशनल इनकम एट करेंट प्राइसेस एंड द कांस्टेंट प्राइसेस। बेटर इंडिकेटर देखेंगे, कौन सा बेटर इंडिकेटर होता है, वेदर रियल होता है और नॉमिनल, रियल जीडीपी बेटर इंडिकेटर होता है और नॉमिनल जीडीपी बेटर इंडिकेटर होता है, वो देखेंगे। फिर कन्वर्जन देखेंगे नेशनल इनकम का, कैसे हम लोग करेंट प्राइस में करेंट प्राइस को इनटू कांस्टेंट प्राइस में करेंगे। और लिमिटेशंस देखेंगे जीडीपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी और जीएनपी का कैसे हम लोग कन्वर्जन करेंगे, उसकी व्हाट आर द डिफरेंट लिमिटेशंस, डिफरेंट लिमिटेशंस क्या होते हैं वो देखेंगे। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो हम लोग मीनिंग ऑफ द ग्रीन जीएनपी। ग्रीन जीएनपी क्या होता है, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है उसको देखेंगे। एंड द मीनिंग ऑफ द जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, मतलब प्राइस इंडेक्स क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। एंड देयर आर आल्सो डिफरेंट क्वेश्चंस व्हिच इज बेस्ड ऑन द जीडीपी डिफ्लेटर, वी विल आल्सो डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका ट्रीटमेंट ऑफ द डिफरेंट आइटम्स इन द कैलकुलेशन ऑफ द नेशनल इनकम, कि ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे जो डिफरेंट आइटम्स हम लोग ले रहे हैं वाइल कैलकुलेटिंग दी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त। तो इसमें पहला क्या है कि आइटम्स इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एंड दी देयर रीजंस, ठीक है, जो आइटम इंक्लूड हो रहे हैं वो देखेंगे, और क्या देखेंगे, उसके रीजंस देखेंगे कि नेशनल इनकम में वो इंक्लूड क्यों हो रहे हैं। फिर क्या देखेंगे, आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एंड देयर रीजंस,
और आइटम जो इंक्लूड नहीं हो रहे हैं उसके रीजंस क्या है वो देखेंगे। एग्जाम्पल्स देखेंगे आइटम्स दैट आर इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड फॉर एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। ठीक है, आइटम्स क्या क्या जो भी आपके क्या हो रहे हैं, इंक्लूड हो रहे हैं, और जो इंक्लूड नहीं हो रहे हैं उनके देखेंगे, रीज़न देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे आइटम डेट आर इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड। फिर ट्रीटमेंट देखेंगे डिफरेंट आइटम्स के फॉर एस्टिमेटिंग डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। ठीक है, ट्रीटमेंट देखेंगे डिफरेंट आइटम्स का कि वो आइटम्स इंक्लूड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उनका वो कि एस्टिमेट करते टाइम डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम को। नेक्स्ट टॉपिक है रिकॉन्सिलेशन ऑफ द 3 मेथड्स ऑफ द मेजरिंग नेशनल इनकम। जो 3 मेथड्स हैं उनका रिकॉन्सिलाइजेशन करेंगे, फिर से उनको देखेंगे कैसे हम लोग करते हैं। ये हो गया आपका मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या होगा आपका चैप्टर मनी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है दैट इज़ मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, यूनिट 2 है मनी एंड बैंकिंग, जिसमें पहला हमें क्या देखना है, मनी देखना है, जिसमें इवोल्यूशन ऑफ मनी, मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ था, मतलब ओरिजिन जिसकी बात करते हैं हम लोग कि मनी का ओरिजिन क्या है। फिर हम लोग क्या देखेंगे, मनी की मीनिंग देखेंगे। ओके, लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी, फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। फिर हमें क्या पढ़ना है, दैट इज़ नैरो वर्सेस ब्रॉड मनी। नैरो मनी क्या होता है, ब्रॉड मनी क्या होता है, और मनी एंड नियर मनी क्या होता है। मनी जो विच इज़ यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट, ठीक है, बट नियर मनी वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू दी कैश। हमको इनको क्या करना पड़ता है, कैश में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो क्या है आपका मनी सप्लाई। सप्लाई, मनी सप्लाई क्या होता है, मीनिंग ऑफ द मनी सप्लाई, components of the money supply, measures of the money supply, what are the different measures, जिसमें हम लोग M1, M2, M3, M4 ये सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो पढ़ना है वो है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में मीनिंग एंड द फीचर्स ऑफ द बार्टर सिस्टम। और फिर नेक्स्ट पढ़ना है हमें लिमिटेशन और द प्रॉब्लम ऑफ द बार्टर सिस्टम, की लिमिटेशन क्या है और प्रॉब्लम क्या हो रही है बार्टर सिस्टम की, वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो फंक्शंस ऑफ द मनी। मनी का क्या फंक्शन है, प्राइमरी और द बेसिक फंक्शन ऑफ मनी, मनी कैसे वर्क करता है, उसके फंक्शंस क्या हैं, सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज दैट इज़ बैंकिंग। ठीक है, मीनिंग क्या होती है बैंकिंग की, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक, फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक कैसे फंक्शन करता है, उसका क्रेडिट क्रिएशन देखेंगे, मतलब मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस देखेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो क्या होगा, फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं, फिर सेंट्रल बैंक क्या होता है, इसकी मीनिंग और इसके फीचर्स देखेंगे, व्हाट इज़ द सेंट्रल बैंक एंड व्हाट इज़ द फीचर ऑफ द दिस, राइट। नेक्स्ट जो हमें देखना है वो क्या है आपका डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल बैंक एंड द कमर्शियल बैंक। ठीक है, डिफरेंस किसके बीच का, व्हाट इज़ सेंट्रल बैंक एंड व्हाट इज़ कमर्शियल बैंक, उनके बीच का क्या डिफरेंस होता है। ये आपका हो गया यूनिट 2 में। यूनिट 3 में हमें क्या पढ़ना है, द यूनिट 3 इज़ रिलेटेड टू योर डिटर्मिनेशन ऑफ द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, की इनकम और एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, जिसमें हम लोग ठीक है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड द रिलेटेड एग्रीगेट्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है इसमें मीनिंग एंड द कंपोनेंट्स ऑफ द एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, मीनिंग क्या होता है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं एग्रीगेट डिमांड के, वो देखेंगे। एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोला जाता है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड को हम लोग ये सब थॉरोली डिस्कस करेंगे। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोला जाता है, एंड कंपोनेंट्स ऑफ एडी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन 4 सेक्टर इकॉनमी। 4 सेक्टर इकॉनमी में देखेंगे, 4 सेक्टर इकॉनमी में क्या क्या आता है, पहला फर्म, सेकेंड आता है आपका हाउस होल्ड, थर्ड आता है दैट इज गवर्नमेंट, एंड फोर्थ वन इज ROW दैट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये आपके क्या हो गया, 4 सेक्टर हो गए इकॉनमी में।
राइट। फोर्थ सेक्टर हो गया फर्म, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बेसिकली दैट इज फोर सेक्टर इकॉनमी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर इकॉनमी। जब हम लोग टू सेक्टर इकॉनमी की बात करेंगे तो उसमें क्या क्या हो जाएगा, हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर एंड थर्ड सेकंड हो जाएगा फर्म, ठीक है। और जिसको फर्म को और क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, हाउस होल्ड, फर्म और प्रोड्यूसर सेक्टर बोलते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा आपका टू सेक्टर में। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, लीनियर कंजप्शन फंक्शन, ठीक है। लीनियर कंजप्शन फंक्शंस क्या होते हैं, लीनियर सेविंग फंक्शन क्या होता है, ये भी डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट मीनिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ द एग्रीगेट सप्लाई। मीनिंग क्या होती है और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं एग्रीगेट सप्लाई के, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर क्या पढ़ेंगे, मीनिंग एंड मीनिंग ऑफ द कंजप्शन फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन की मीनिंग क्या होती है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिस्कस करेंगे, राइट। टाइप्स ऑफ द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, मीनिंग ऑफ द सेविंग फंक्शन क्या होता है, प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, सेविंग फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू सेव देखेंगे। टाइप्स ऑफ द सेविंग फंक्शन, प्रोपेंसिटी टू सेव वी विल डिस्कस, राइट। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डिस्कस दैट इज derivation of the saving function, or it is also known as the saving curve from the consumption function curve, और consumption function curve from the saving function or the curve। जब क्या होगा, सेविंग फंक्शन दिया होगा आपको, कंजप्शन फंक्शन डिराइव करना होगा। जब कंजप्शन फंक्शन दिया होगा तो आपको सेविंग फंक्शन क्या करना पड़ेगा, डिराइव करना पड़ेगा। डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजप्शन कर्व, डेरिवेशन ऑफ कंजप्शन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। नेक्स्ट क्या है आपका, एडिशन टू द एपीसी एंड एपीएस। मतलब एडिशन किस में होगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडिशन टू द एमपीसी एंड एमपीएस, एडिशन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं इन्वेस्टमेंट के, डिफरेंस क्या होता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं इन्वेस्टमेंट के, फिर मीनिंग ऑफ एक्सेंट सेविंग, एक्सेंट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस मीनिंग ऑफ एक्सपोज्ड सेविंग, एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट वी विल डिस्कस। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ द फुल एम्प्लॉयमेंट, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। कंसेप्ट किसका, फुल एम्प्लॉयमेंट का क्या होता है, वॉलेंट्री का क्या होता है और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की क्या कंसेप्ट होता है। इसको हम लोग वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है दैट इज इनकम डिटर्मिनेशन एंड द मल्टीप्लायर, ठीक है। इनकम कहाँ डिटरमाइन होता है एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द मल्टीप्लायर, वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। फिर हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट की डिटर्मिनेशन कहाँ पे होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम बाय एडी एंड एएस अप्रोच। एडी एंड एएस अप्रोच से डिटर्मिनेशन कहाँ होगा, डिटर्मिनेशन इक्विलिब्रियम का बाय सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच से कैसे होगा, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखेंगे जिसमें फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन देखेंगे, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन देखेंगे और अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है दैट इज स्कूल ऑफ थॉट, स्कूल्स ऑफ थॉट, जिसमें क्लासिकल थॉट और किंशियन थॉट पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है वो ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके होंगे जहाँ तक आपको याद होगा, ठीक है। तो स्कूल्स ऑफ थॉट देखेंगे जिसमें क्लासिकल थॉट और किंशियन थॉट, क्या बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के थॉट में, क्लासिकल और किंशियन, ये देखेंगे। कंपैरिजन देखेंगे बिटवीन दी क्लासिकल एंड किंशियन, क्लासिकल और किंशियन के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या उनके बीच का डिफरेंस है वो देखेंगे और कंपेयर करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। फिर नेक्स्ट हमें पढ़ना है मीनिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, रिलेशन देखेंगे मल्टीप्लायर और दी एमपीसी का, ठीक है। फिर रिलेशन किसका देखेंगे, मल्टीप्लायर एंड एमपीएस का, मल्टीप्लायर और एमपीएस के बीच में क्या रिलेशन होता है, वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर देखेंगे, मल्टीप्लायर वर्क कैसे करता है एंड
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मल्टीप्लायर। तो इस चैप्टर में इनकम डिटर्मिनेशन एंड द मल्टीप्लायर में ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज Unit 9 or Chapter 9, that is excess demand and the deficient demand. So in this chapter we are going to discuss the meaning of the excess demand और inflationary gap, कि excess demand की meaning क्या होती है, inflationary gap क्या होता है, causes क्या हैं excess demand के, and what are the different impact of excess demand, कि excess demand का impact क्या होगा। next जो हम पढ़ेंगे that is मीनिंग ऑफ दी डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप, की डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप की मीनिंग क्या है, उसके कॉजेज़ क्या हैं डेफिशिएंट डिमांड के, इम्पैक्ट क्या है डेफिशिएंट डिमांड का, ये पढ़ेंगे। फिर देखेंगे डिफरेंस बिटवीन दी एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के बीच का डिफरेंस, डिफरेंट पॉलिसी मेजर्स टू कंट्रोल दी एक्सेस डिमांड एंड दी डेफिशिएंट डिमांड, कि व्हाट आर दी डिफरेंट पॉलिसीज़, कौन सी ऐसी हम लोग पॉलिसी को लेंगे जो एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन को कंट्रोल करता है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे दैट इज़ फिस्कल पॉलिसी एंड दी फिस्कल पॉलिसी में देखेंगे हम लोग मीनिंग एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किए जाते हैं टू कंट्रोल इट। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी में इसके मीनिंग देखेंगे, इसका इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे टू इम्पैक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, कि जो भी अवेलेबिलिटी है क्रेडिट के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हाउ आर दी फॉलोइंग चेंजेस टू करेक्ट एक्सेस डिमांड एंड दी डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है, कौन कौन से ऐसे चेंज हम ले सकते हैं कि करेक्ट किसको, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करने के लिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स को हम लोग ले सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा आपका यूनिट 4 और चैप्टर 10, राइट। यूनिट 4 और चैप्टर 10 में हम लोग क्या देखेंगे, पहले देखेंगे गवर्नमेंट बजट, राइट। गवर्नमेंट बजट एज आई ऑलरेडी टोल्ड दैट कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है, कि गवर्नमेंट क्या आती है अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का प्रॉपर स्टेटमेंट लेती है कि कहाँ से कितने सोर्स हैं गवर्नमेंट के रेवेन्यू के, कहाँ पे गवर्नमेंट को क्या करना है, एक्सपेंडिचर करना है। तो सिंपली गवर्नमेंट बजट में किससे रिलेटेड होता है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, राइट, ठीक है। तो इसमें देखेंगे, इसकी सबसे पहले मीनिंग देखेंगे कि मीनिंग क्या है बजट की। नेक्स्ट देखेंगे फीचर्स क्या हैं गवर्नमेंट बजट के, व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बजट। बजट जो भी प्रिपेयर किया जा रहा है उसका ऑब्जेक्टिव, ओके। फिर हम लोग क्या देखेंगे इसमें, व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बजट, बजट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस लिए बजट को प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस दी स्ट्रक्चर एंड द कंपोनेंट्स ऑफ द बजट, बजट का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स, बजट के क्या क्या कंपोनेंट ले रहे हैं उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे मीनिंग ऑफ द बजट रिसिट। बजट रिसिट होता है कि गवर्नमेंट की जो भी रिसिट हैं, कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट को रेवेन्यू और रिसिप्ट मिल रहा है और गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे एक्सपेंडिचर कर रही है। सो मीनिंग ऑफ द बजट रिसिट हो गया रेवेन्यू रिसिट, ठीक है, रेवेन्यू के थ्रू कौन सी रिसिट होगी, और फिर नेक्स्ट हो गया कैपिटल रिसिट, डिफरेंट कैपिटल के थ्रू कौन कौन से उसके रिसिप्ट होंगे, ये डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे मीनिंग ऑफ द बजटरी एक्सपेंडिचर, कि जो भी बजट से रिलेटेड गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर देखेंगे डेवलपमेंट एंड दी नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्सपेंडिचर करती है, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर करती है, वो देखेंगे। नेक्स्ट होगा आपका प्लान एंड दी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, कि जो भी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के ऑलरेडी प्लान्ड है उनको, और जो भी गवर्नमेंट का है जो एक्सपेंडिचर्स के प्लान नहीं है बट वो कोई भी डिफरेंट कंटिजेंसी हो जा रही है उसकी वजह से जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको देखेंगे। नेक्स्ट लास्ट है आपका इस चैप्टर का, दैट इज़ बजट डेफिसिट एंड इट्स टाइप, ठीक है। तो बजट डेफिसिट कौन कौन से होते हैं और उसके डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला आपका रेवेन्यू डेफिसिट, कहाँ कहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है, रेवेन्यू जो जनरेट हो गया बट गवर्नमेंट का इसमें डेफिसिट कैसे होता है। जब भी व्हेन वी टॉक अबाउट द डेफिसिट दैट मीन्स
गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, इट विल बिकम मोर देन दी रेवेन्यू, राइट। रेवेन्यू से ज़्यादा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो जा रहा है, ठीक है। तो बजट डेफिसिट क्या होता है, डेफिसिट मतलब बजट डेफिसिट मतलब एक्सपेंडिचर बिकम मोर देन दी इनकम और दी रेवेन्यू, ठीक है। इसके टाइप्स क्या क्या हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड दी प्राइमरी डेफिसिट, राइट। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। सो फॉरेन एक्सचेंज रेट में हमें क्या क्या पढ़ना है, हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है और फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, ठीक है। देखने में ये दोनों वर्ड आइडेंटिकल हैं बट दोनों की मीनिंग थोड़ी सी डिफरेंस है, बिकॉज फॉरेन एक्सचेंज में हम लोग बात करते हैं कि जो भी सारे फॉरेन करेंसी है, फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट के जो भी कॉरपोरेट सेक्टर, फॉरेन कॉरपोरेट्स के जो भी सिक्योरिटीज़ हो गया, करेंसीज़ हो गया, उनकी बॉन्ड्स हो गया, उनकी बात करते हैं। रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट होने का मतलब है कि किस रेट से एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री की करेंसी से क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है, उसको बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये डिफरेंट टाइप्स क्या है फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम के, जिसमें सबसे पहले आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है जिसमें क्या होता है, दिस इज डन बाय द टोटली गवर्नमेंट, ओके। गवर्नमेंट विल डिसाइड द रेट, एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, हम लोग इसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ठीक है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है, नेक्स्ट है आपका मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ये देखेंगे। फिर है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, सो वेयर विल बी द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट विल डिटरमाइन, in that case we will see the sources and the determinants of the demand of the foreign exchange, what are the different sources of demand, foreign exchange की demand के लिए sources of supply of for foreign exchange, supply foreign exchange की है उसको देखेंगे। फिर determinants equilibrium rate of foreign exchange देखेंगे कि equilibrium rate पे foreign exchange कहाँ पे determine हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे that is causes of change in rate of foreign exchange, कि कौन से ऐसे कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज हो रहा है, तो जिसमें सबसे पहला डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड दी नेक्स्ट विल बी एप्रिसिएशन ऑफ दी डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का मतलब हो जाता है आपका एप्रिसिएशन फॉरेन करेंसी का हो रहा है, नेक्स्ट है एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मीन्स डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दैट इज़ कॉजेज़ और रीज़न और फॉल इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज़ क्या हैं और राइज एंड फॉल क्या है डिमांड एंड सप्लाई के, तो रीज़न एंड कॉजेज़ देखेंगे, राइज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड रीज़न एंड कॉज फॉर राइज इन द सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी, क्यों उसकी राइज हो रही है। नेक्स्ट हमें देखना है दैट इज़ मीनिंग ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की मीनिंग क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के, ऑपरेशन क्या है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्पॉट मार्केट एंड दी फॉरवर्ड मार्केट, राइट। लास्ट यूनिट है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की, दैट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमें क्या देखना है, हम लोग इसमें पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की मीनिंग क्या होती है, ठीक है। मीनिंग देखेंगे जिसमें इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं बीओपी के। नेक्स्ट पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें पढ़ना है हमको मीनिंग एंड कंपोनेंट ऑफ द करंट अकाउंट, राइट, मीनिंग एंड द कंपोनेंट ऑफ द करंट अकाउंट। नेक्स्ट पढ़ेंगे मीनिंग एंड द कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल अकाउंट, डिफरेंस बिटवीन द बीओपी करंट अकाउंट एंड द बीओपी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पहले हम लोग मीनिंग देखेंगे करंट अकाउंट की, फिर उसके कंपोनेंट देखेंगे, फिर मीनिंग एंड कंपोनेंट हम कैपिटल अकाउंट के देखेंगे, फिर डिफरेंस देखेंगे बीओपी करंट अकाउंट में और बीओपी कैपिटल अकाउंट में, कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम क्या क्या हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग ऑटोनॉमस आइटम्स क्या होते हैं वो देखेंगे।
एकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होते हैं वो देखेंगे, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे बिटवीन दी ऑटोनॉमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स, कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट है आपका डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी, बीओपी में डिसइक्विलिब्रियम कब होता है और कॉजेज उसके देखेंगे। एंड द लास्ट ऑफ योर मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बैलेंस ऑफ पेमेंट इन accounting sense and the operational sense, right? So these all are the topic that we are going to discuss in the macroeconomics.